Assalamu alaikum, dear students. Hope you all will be fine, and I hope that you have read all the unit 5 that I have given you as a homework, right? And you will already know the story, right? That what happened when the bear growled behind Tom and Jeff, right? So we are reading, as you know, that we are reading unit 5 on page 22, Friends Stick Together, right? We are reading the unit Friends Stick Together, and yesterday we read first paragraph and the second half paragraph, right? We read the first 3 lines of second paragraph. Today we'll be starting from the line Tom tripped and hurt his foot. And you know what we read yesterday, that Tom and Jeff, they are friends, they live in the mountains, they love go to the forest, but they don't like one thing about forest, that is bears, right? And both of them, they promise each other that if any bear comes out of the trees, they will help each other, they won't run from each other, and what they will do, they will stay with each other, right? So what happens that one day Tom and Jeff, they are in the forest, they are having their picnic, right? So suddenly a bear comes out of the trees and growls behind them, roars behind them. When they turned around, they saw what? Yes, they saw a great big bear, as you can see in the picture over here. They saw a great big bear, right? So what they did, they were scared and they started to run, right? We read up to here. Look at the line over here. Take out your pencils and your books. Okay, hurry up, students. Now we are going to start this line. Tom tripped and hurt his foot, right? So be attentive. Okay, Tom tripped. How we will pronounce tripped? Tripped means फिसलना, right? जब आप बहुत तेज भागते हो, सही है, और आपका पाँव फिसल जाए और आप गिर जाते हो, so that action is called tripping. Tom tripped. वो दोनों भाग रहे थे ना, Tom and Jeff, because they saw a bear. So वो डर के भाग रहे थे. जब वो भाग रहे थे तेजी से, तो टॉम के साथ क्या हुआ? He tripped. वो फिसल गया, और उस फिसलने के नतीजे में क्या हुआ? And hurt his foot. और उसने अपना पाँव जख्मी कर लिया. Hurt means जख्मी करना. His foot, अपना पाँव, right? टॉम ने क्या किया? वो फिसल गया and hurt his foot, और अपना पाँव जख्मी कर लिया उसने as a result. Okay, so what happens then? Jeff did not stop. Tom and Jeff, they were running, so Jeff did not stop. वो रुका नहीं. Wait, please help me, said Tom. When Jeff did not stop, so Tom ने उसका आवाज़ दी और उसको क्या कहा? Wait, कि इंतज़ार करो. Wait, please help me, मेरी मदद करो. But Jeff was afraid. लेकिन Jeff क्या था? He was afraid. वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा था. And he kept running. और उसने दौड़ना जारी रखा. So he didn't stop. Jeff ने actually Tom की help नहीं की. वो वहाँ से भाग गया. Jeff ने क्या किया? He climbed a tree. वो एक दरख्त पे चढ़ गया. And was safe. और वो वहाँ महफूज था. He climbed a tree. वो एक दरख्त पे चढ़ गया. And was safe. और वो वहाँ महफूज था. राइट? भागते भागते फॉरेस्ट में वो एक दरख्त पे चढ़ा और वो वहाँ पे महफूज था. बियर उस तक नहीं पहुँच सकता था. He looked back and saw Tom. उसने पीछे देखा, राइट? And saw Tom, और टॉम को देखा. He looked back and saw Tom. Okay, so अब टॉम ने क्या किया खुद को बचाने के लिए? Now we will read it in the last paragraph, right? Okay. Tom was lying on the ground. What Tom did? He was lying on the ground. Tom ज़मीन पर लेटा हुआ था. Lying means लेटना, right? You can see in the picture. This position is called lying. And look at Jeff. He climbed the tree, right? So he's safe there. Now Tom is in danger. So what he did? He was lying on the ground. टॉम ज़मीन पर लेटा हुआ था. टॉम वॉज अफ्रेड. टॉम बहुत खौफज़दा था. ही वॉज स्केर्ड. अफ्रेड मीन खौफज़दा. बट इट वॉज टू लेट. लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी. बट इट वॉज
टू लेट, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। क्यों बहुत देर हो चुकी थी? क्योंकि जेफ भाग गया था वहाँ से। ही क्लाइम्ड ओवर द ट्री, और बियर बिल्कुल उसके पीछे था। सो खुद को बचाने के लिए उसने क्या किया? दैट ही लाइड ऑन द ग्राउंड। नाउ जब वो ज़मीन पर लेटा तो उसने क्या किया? ही प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड मीन जाहिर करना। ही प्रिटेंडेड, उसने जाहिर किया। उसने क्या जाहिर किया? येस, दैट ही वॉज डेड, कि वो मुर्दा है, कि वो मर चुका है। एज इफ ही इज़ डेड। और उसने ऐसे किस तरह जाहिर किया? कि उसने अपनी सांस रोक ली, राइट? उसने अपनी सांस रोक ली। सो ही प्रिटेंडेड एज इफ ही इज़ डेड। नाउ द बियर केम ओवर टू टॉम, बियर टॉम के पास आया। द बियर केम ओवर टू टॉम, ही पुट हिज नोज डाउन, उसने अपनी नाक नीचे की। किसने? बियर ने। एंड स्मेल्ड हिम, और टॉम को सूंघा, राइट? एंड स्मेल्ड हिम, और टॉम को सूंघा। स्मेल्ड मीन्स सूंघना, राइट? नोज के जरिए किसी चीज़ को स्मेल करना। ही स्निफ्ड एंड स्निफ्ड। ओके, स्निफ्ड जो है ये भी स्मेलिंग को कहते हैं, लेकिन जब आप नाक के ज़रिए सांस को अंदर लेके खींचते हैं, सही है ना, उसको स्निफिंग बोलते हैं। किसी चीज़ को सूंघने के लिए जब आप किसी चीज़ को सूंघते हैं और फिर उस चीज़ से नाक हटा के सांस अंदर खींचते हैं ताकि उस स्मेल को फील कर सके, तो इस प्रोसेस को स्निफिंग बोलते हैं। अब ब्रीच ने क्या किया? बियर ने, कि वो टॉम को सूंघ रहा था, उसको स्मेल कर रहा था। तो जब वो उसको स्मेल कर लेता फिर वो स्निफिंग कर लेता। वो अपनी नाक से हटा के हवा में सांस अंदर खींचता ताकि वो उसकी स्मेल को महसूस कर सके, लेकिन वो नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि टॉम ने प्रिटेंड किया था एज इफ ही इज़ डेड, उसने अपनी सांस रोक रखी थी। ही थॉट, उसने सोचा टॉम वॉज डेड, कि टॉम क्या है? वो मर चुका है। सो ही वेंट अवे, तो वो दूर चला गया। उसने सोचा कि टॉम मुर्दा है, दैट टॉम इज़ डेड। सो ही वेंट अवे, सो वो चला गया। कौन चला गया? यस, द बियर। ही टर्न्ड बैक टू द पिकनिक टेबल, ही टर्न्ड बैक टू द पिकनिक टेबल, वो पिकनिक टेबल की तरफ आया, उसकी तरफ मुड़ा। टर्न्ड बैक, वापस मुड़ना। टू द पिकनिक टेबल की तरफ। एंड एट द पिकनिक, और क्या खा लिया? और सारी पिकनिक क्या की? खा ली। एट मीन्स खा लेना, द पिकनिक। टॉम और जेफ जो अपने साथ पिकनिक में चीज़ें लेके आए थे, सही है, जो फूड आइटम्स थी, वो सारी बियर ने खा ली। ही वेंट अवे हैप्पी, वो खुशी खुशी चला गया क्योंकि उसका पेट भर गया, उसे खाने की चीज़ मिल गई। नाउ उसके जाने के बाद क्या हुआ? व्हाट हैपेंस टू जेफ? दैट जेफ केम डाउन द ट्री, जेफ केम डाउन द ट्री, जेफ दरख्त के से नीचे आया। एंड केम ओवर टू टॉम, और टॉम के पास आया। यू रिमेंबर कि वो दरख्त पे चढ़ा हुआ था, राइट? सो उसने क्या किया? अब वो दरख्त से नीचे आया और टॉम के पास आके क्या कहने लगा? What did the bear say when he put his mouth near you? said Jeff. What did the bear say when he put his mouth near your ear? said Jeff. जेफ ने क्या कहा उससे? क्या पूछा? कि बियर ने उससे क्या कहा जब वो अपना मुंह आपके या तुम्हारे कान के करीब लेके आया, राइट? जेफ तो ऊपर ट्री पे था, उसे ये दिखाई दिया कि बियर ने क्या किया? बियर ने अपना मुंह किसके करीब लेके आया? टॉम के कान के करीब लेके आया, और उसे ऐसे फील हुआ एज इफ बियर इज सेइंग समथिंग टू टॉम। असल में वो उस टाइम क्या कर रहा था? ही वॉज एक्चुअली स्मेलिंग टॉम, बट जेफ वॉज नॉट देयर एट दैट टाइम। सब वो उससे पूछ रहा है कि व्हाट डिड द बियर से, कि बियर ने यानी रीच ने उससे क्या कहा जब वो अपना मुंह टॉम के कान के करीब लेके आया। नाउ टॉम आंसर, टॉम ने जवाब दिया उसे, द बियर टोल्ड मी, बियर ने मुझे क्या कहा? द बियर टोल्ड मी टू बी वेरी केयरफुल हु आई पिक एज फ्रेंड्स। The bear told me to be very careful who I pick as friends. This line is very important कि बियर ने मुझे बताया कि मुझे उन लोगों के बारे में बहुत मुहतात रहना चाहिए जिनको मैं अपने दोस्त के तौर पे पिक करता हूँ, चुनता हूँ। पिक चुनना,
केयरफुल मोहतात, टोल्ड बताना। द बियर टोल्ड मी, बियर ने या रीछ ने मुझे बताया, टू बी वेरी केयरफुल कि मैं बहुत मोहतात रहूँ, हु आई पिक एज फ्रेंड्स के जिनको मैं अपने दोस्त के तौर पे चुनता हूँ। ही सैड, बियर ने कहा, ही सैड उसने कहा, फ्रेंड्स स्टिक टुगेदर के दोस्त हमेशा जुड़े रहते हैं, दे ऑलवेज स्टे विद ईच अदर, एंड नॉट टू बॉदर, बॉदर मीन्स परेशान होना, टेंशन लेना किसी बात की, एंड नॉट टू बॉदर विद पीपल हु रन अवे फ्रॉम यू, और उन लोगों के बारे में परेशान नहीं होना जो आपको छोड़ के भाग जाते हैं, when you need them most, जब आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। राइट, आपको समझ आ गई इस बात की कि उन लोगों के बारे में परेशान नहीं होना जो आपको छोड़ के भाग जाते हैं उस वक्त जब आपको इनकी ज़रूरत होती है, एंड नॉट टू बॉदर विद पीपल हु रन अवे फ्रॉम यू व्हेन यू नीड देम मोस्ट। राइट, ये जो लास्ट लाइन्स है ये एक तरह से इस यूनिट का मोरल भी है। राइट, फर्स्ट हमें क्या करना चाहिए कि जो हम जिन लोगों को हम एज फ्रेंड्स चूज़ करें, राइट, उनके बारे में बहुत केयरफुल हों, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। सही है ना, आप उनके साथ बात करते हैं, उनके साथ टाइम गुजारते हैं, तो जैसे होंगे एट द एंड ऑफ द डे आप भी उनकी कुछ आदत आप में भी आ जाएंगी। सही है, अगर वो अच्छे हैं तो आप भी अच्छे बन जाएंगे, और अगर उनमें कुछ ऐसी आदतें हैं जो बुरी हैं तो वो आप भी बुरे बन जाएंगे उस तरह से। सो बियर ने उससे कहा कि उन लोगों के बारे में मोहतात रहना है जिनको आपने एज अ फ्रेंड्स अपने लिए पिक करना है। और दूसरी बात क्या है कि फ्रेंड्स जो होते हैं वो हमेशा साथ रहते हैं, दे स्टिक टुगेदर, दे डोंट रन अवे फ्रॉम ईच अदर, दे ऑलवेज हेल्प ईच अदर। और दूसरी बात कि उन लोगों के बारे में परेशान नहीं होना, उन लोगों के बारे में बिल्कुल भी आपने बॉदर नहीं करना जो लोग भाग जाते हैं जब आप मुश्किल सिचुएशन में हो। राइट, फ्रेंड्स का पता कब चलता है, जब आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो। राइट, जब आपको उनकी मदद की ज़रूरत हो, जो आपकी मदद करे उस टाइम, सो वो एक लॉयल फ्रेंड है, वो एक ट्रू फ्रेंड है आपका। और जो आपसे भाग जाए वो आपका फ्रेंड नहीं है एक्चुअली, सो उस वक्त आपको पता चल जाता है। राइट, so this was the end of the unit. Okay, now come here, Tom tripped and hurt his foot. मैं एक दफ़ा रीड कर रही हूँ आपके लिए, and then we will write words meanings, right, and you will write it on your books. I'll show you in the rough copy. Tom tripped and hurt his foot. Jeff did not stop. Wait, please help me, said Tom, but Jeff was afraid and kept running. He climbed a tree and was safe. He looked back and saw Tom. Tom was lying on the bed on the ground. Tom was lying on the ground. Tom was afraid, but it was too late. He pretended he was dead. The bear came over to Tom. He put his nose down and smelled him. He sniffed and sniffed. He thought Tom was dead, so he went away. He turned back to the picnic table and ate the picnic. He went away happy. Jeff came down the tree and came over to Tom. What did the bear say when he put his mouth near your ear? Said Jeff. Tom answered, the bear told me to be very careful who I pick as friends. He said, friends stick together, and not to bother with people who run away from you when you need them most. Okay, here your chapter ends. Okay students, these are some of the words meanings, the difficult words meanings in Urdu. Right, take out your pencils and start writing it on the words in books. Right, with pencils. It's 27th of April 2020. Today is Monday and it's your classwork. First word is tripped, TRIPPED, tripped. Tripped mean पिसल गया. राइट, ट्रिप जो है ये ट्रिप का सेकंड फॉर्म है, सो इट मीन्स फिसल गया, एंड ट्रिप मीन्स फिसलना. राइट, ये पास्ट टेंस में है, सो इसकी उर्दू मीनिंग हम फिसल गया इस तरह लिखेंगे, एंड इट मीन्स फिसलना. राइट, ट्रिप्ड
फिसलना या फिसल गया। लुक एट द वर्ड, हम लोग इस तरह लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज हर्ट। हर्ट मीन्स ज़ख्मी करना, हर्ट ज़ख्मी करना। अफ्रेड, AFRAID, अफ्रेड खौफज़दा, डरा हुआ या खौफज़दा। केप्ट, KEPT, केप्ट जारी रखा, जारी रखा। केप्ट जो है वो कीप की सेकंड फॉर्म है, कीप, केप्ट, केप्ट, राइट। सो इट मीन्स जारी रखा, कीप मीन्स जारी रखना, as if it is the second form, so its meaning is जारी रखा। Next word is climbed, CLIMBED, climbed चढ़ना या चढ़ गया। It's the second form of climb. Climb means चढ़ना and climbed, ED, right? It's the second form, it's in the past tense, so चढ़ गया, alright? Next word is safe, SAFE, safe. Safe means महफूज. We will write it like this. Next word is lying, 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 lying. It means लेटना, लेटना. We will write it like this. Smelled, 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 smelled. It means सूंघना, right? It means सूंघना. Okay, next word is careful, CAREFUL, careful. It means मोहतात, right? Careful, मोहतात. Pick, 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 pick. It means चुनना, हम ऐसे लिखेंगे. It means selection, when you select or when you choose something, so it refers to picking something. Last word is bother, 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 bother. It means परेशान होना. We will write it like this. Bother means परेशान होना, right? These are your words meanings, and as you know, your homework is that you have to read the whole unit again. Also pronounce the difficult words again and again, and you have to write these word meanings in your books, these Urdu meanings in your books, all right?